So guys, in the previous session, we have studied about one of our argument for the social responsibility that was the justification for existence and growth, जिसमें हमने देखा था कि जो business है वो exist ही क्यों कर पा रहा है because we have the problem in society and we need to cater the that problems by our products and services by our business solutions हमने देखा था. Then now in this session we will be covering about the long term interest of the firm. अब लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म में क्या आएगा कि दैट बिजनेस शुड नॉट हैव द सोल एम ऑफ मेकिंग द मनी बट बिजनेस शुड एम एट creating the value, providing solutions to the customer, providing fulfilling the needs and wants of the society. So let's go to our PowerPoint presentation. Then, in the very first lecture and in second lecture also, I have said that business is beyond the profit. So business is not only aiming to the profitability, but is aiming to create a goodwill, to enhance its value, to create the value in the eyes of the society by delivering the good best quality products and services to the society at large. Not even that, business are generating the employment, business are even improving the condition of the locality where they operate. So the business of impact, serving society for the lasting success. इम्पैक्ट का क्या मतलब होता है? इम्पैक्ट का थोड़ा सा मैं मीनिंग एलाबोरेट करना चाहूंगी. वैसे मैं कंपनी का नाम तो नहीं ले सकती बट यस देयर आर मैनी सीए फर्म्स, देयर आर बिग कॉर्पोरेट्स, देयर आर मल्टीनेशनल कंपनीज which exactly celebrate the impact day. And what is impact day? They celebrate it like at the last Friday of each month, celebrating the day by planting a tree, planting a small plant in the earth and cleaning the nearby areas and serving the cows. Okay, so this was the impact day where all the employees of that particular company wear the t-shirt of that company and go on to the campaign programs and spread the awareness about the environmental protection. So these are the societal values. Not even you are making the money, but you are making aware of the societal, ethical, moral activities among the society. So beyond the profit, I think this I know need not to elaborate more because we are talking it from the very first lecture from the introduction part. देन उसके बाद द वर्चस सर्कल ऑफ द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. वर्चस का मतलब होता है कि मोरल एक्टिविटीज, एथिकल एक्टिविटीज. तो एक बिजनेस को क्या क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए जिससे कि वो एक एथिकल बिजनेस माना जाए. फर्स्ट है अपने पास सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. सो अ बिजनेस शुड बी कमिटेड टुवर्ड्स द एथिकल प्रैक्टिसेस व्हिच आर सोशली डिजायरेबल, व्हिच आर नॉट अनएक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी. देन लॉन्ग टर्म ग्रोथ. आज आपने सारे रिसोर्सेज यूज कर लिया है बट what about the future generation? You should exploit the resources but make sure you are also giving the resources back to our nature mother earth. Then good public image. If you are spreading the awareness, if you are delivering good quality products, you are not delivering them the expired product and you are not misleading consumer with the wrong advertisement, तो आपकी गुड पब्लिक इमेज रहने वाली है. आप ट्रांसपेरेंट हो, आप एथिकल हो इन योर वे ऑफ डूइंग बिजनेस. एंड देन स्टेक होल्डर सपोर्ट. दैट इज आपके बिजनेस में ऐसा तो नहीं है कि आप ही प्रोडक्शन कर रहे हो, आप ही फिनेंस संभाल रहे हो, आप ही ऑपरेशनल लेवल की सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, आप ही एम्प्लॉयज को हायर कर रहे हो. वी हैव टू हैव a large number of employees in our big corporates to support our operational as well as financial activities. So, it is necessary for a business to build the trust between employees, investor, customer, government, and also the supplier and other various stakeholders of the business. Then अब अपनी प्रैक्टिकल केस स्टडी आ जाती है. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट टीसीएस, राइट? तो अब टीसीएस को कोई क्यों याद करता है? रतन टाटा हैज अनफॉर्चुनेटली नॉट विद अस. तो उन्हें क्यों याद किया जाता है? ड्यू टू his business ethics, due to his business principle, due to the way he treated the employees.
due to the way they take initiative for the growth of our economy. तो टीसीएस में क्या होता था कि दे हैव द कंसर्न फॉर देयर वर्कर्स, वो वर्कर केयर में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इंगेज रखते थे एंड वो एम्प्लॉयज़ की एजुकेशन के लिए अपने आप को डिवोट करते थे, उनको उनके टाइम टाइम पर उनकी ट्रेनिंग देते थे उन्हें एंड फिर टेस्ट कंडक्ट करते थे, प्रैक्टिकल स्किल असेसमेंट करते थे एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे आर बीइंग given the bonus, the incentive, the promotion also. And not only that, they are concerned with the healthcare support also. After that, the perils of neglect, short-sighted practices. Perils of neglect matlab the reason why a business is not sustaining with the long term. सबसे पहले आ जाता है अपने पास कंज्यूमर बॉयकॉट। कंज्यूमर अब अपने गुड्स एंड प्रोडक्ट्स को क्यों बॉयकॉट करेंगे, क्यों उसको छोड़ेंगे? बिकॉज ऐसा हो सकता है कि हम अनएथिकल ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल बीड़ी, तंबाकू। आपने कभी देखा है कि स्मोकिंग आइटम की एडवर्टीजमेंट करते हुए, या फिर वाइन की एडवर्टीजमेंट आपने कभी देखी है? नहीं देखी, ठीक है। और साथ ही हो सकता है कि आपने एक्सपायर्ड प्रोडक्ट कंज्यूमर को बेच दिया है। देन उसके बाद वर्कर्स एक्सोडस। वर्कर्स एक्सोडस मतलब कि अब आपके जो एम्प्लॉयज है, दे आर नॉट हैप्पी विद यू, दे आर नॉट हैप्पी विद द वे यू ट्रीट them, they are not happy that you are giving them, you are taking the overtime from the employee, but you are not compensating them fairly. The employees having talent, they are not even hear about their suggestions, their corrective measures. So their talent is training in this case. देन उसके बाद अपने पास है गवर्नमेंट पेनल्टीज। राइट, तो गवर्नमेंट पेनल्टीज में क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ? इवन आप ये देखोगे, अगर एक बिग कॉरपोरेट को किसी भी एलएच फ्रॉड में नाम ले दिया जाता है, भले ही वो उसमें इन्वॉल्व नहीं थी, बट बिकॉज उसका नाम उस फ्रॉड में आ गया, जस्ट बिकॉज एंटरिंग इनटू दैट पर्टिकुलर हेडलाइन, उसका शेयर का जो प्राइस है वो गिर जाता है। भले ही उसने फ्रॉड नहीं किया था, बट दैट पर्टिकुलर कंपनी इज इन द न्यूज, इन द एडवर्स रिमार्क्स, इन द नेगेटिव रिमार्क्स, तो वहां पे उसकी जो पब्लिक इमेज है वो क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। एंड इवन ऐसा भी होता है कि कुछ कंपनीज पे एक्चुअली पेनल्टी लगाई जाती है, लीगल एक्शंस लिए जाते हैं, कोई कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, तो वहां पे उसकी इमेज क्या है? खराब है। तो यही कुछ रीजंस है जिसकी वजह से जो आपका बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर पाता है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पर्पस ड्रिवन प्रॉफिट एंश्योर्स दिस सस्टेनेबल सक्सेस। यानी कि जैसे मैंने इस सेशन के इंट्रोडक्शन में बोला कि द एम ऑफ बिजनेस इज नॉट द मेकिंग ऑफ मनी, बट द long term aim is to sustain the business, to create value for the society, to serve in the best possible manner, not to exploit the resources of the nature. If you are taking the resources from the nature, you are also giving back it too. I think I have explained more about this particular point. Now we should move ahead with our book. Long term interest of the firm. A firm and its image stand to gain maximum profit in the long run when it has its highest goal as the service to society. अगर एक बिजनेस का जो मेन एम है वो है कि उसको सोसाइटी को सर्व करना है, उसको सोसाइटी के लिए काम करना है, then that business will grow more, that business will survive more, that business will enjoy the longevity. When increasing number of members of society, including workers, consumers, shareholders, government official, feel that business enterprise is not serving its best interest, they will tend to withdraw their cooperation to the enterprise concerned. अगर हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें अपने एम्प्लॉयज भी आ गए, कंज्यूमर्स भी आ गए, इन्वेस्टर आ गए, शेयर होल्डर्स आ गए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ गए, अगर दे थिंक कि बिजनेस एथिकल प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, बिजनेस डिजायर्ड गुड्स नहीं दे रहा है, तो वहां पे और जो एम्प्लॉय है उनको ठीक से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, देन दे विल बॉयकॉट दी particular product and services from that business, they will even boycott their job from that particular corporate. Even आपने ये भी सुना होगा आजकल
फेमस हेडलाइन है कि एम्प्लॉयज नॉट लीव योर कॉर्पोरेट because you haven't given them high, but they have resigned from your corporate because you are not treating them well. मतलब कॉर्पोरेट में एम्प्लॉय कॉर्पोरेट को क्यों छोड़ के जा रहा है, वो इसलिए नहीं छोड़ के जा रहा कि उसकी जो सैलरी है वो हाइक नहीं की जा रही, उसको इंक्रीज नहीं किया जा रहा, बट एम्प्लॉयज कॉर्पोरेट को उनके साथ हुए मिसबिहेव के कारण छोड़ के जा रहे हैं, या फिर उनको उतना स्किल्स नहीं मिल रहा है वहां से, या फिर उसका जो एनवायरनमेंट है, हाइजीनिक कंडीशंस है, वो कॉर्पोरेट की अच्छी नहीं है, कॉर्पोरेट में बहुत पॉलिटिक्स चल रही है और उसको चाहिए पीस ऑफ माइंड. We are there in corporate to work. We are not there to engage in the politics. Therefore, it is in its own interest if a firm fulfills its social responsibility. The public image of any firm would also be improved when it supports the social goals. And social goals मैंने आपको बिल्कुल इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी पढ़ाए थे, इफ यू रिमेम्बर, जहाँ पे मैंने आपको बताया था एंड ऑफ पॉवर्टी, नो वन विल बी एंड ऑफ हंगर, ये सब हमने देखा था. फिर प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, अब मुझे तो इसलिए याद है, मैंने सीए फाइनल पढ़ रखे है, तो आप इस चीज को तो लेके चलो कि अगर मैं आपको पढ़ा रही तो मैंने उसको बहुत बार पढ़ा हुआ है. आई हैव स्पेंट मैनी इयर्स इन माई सीए कोर्स विथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. ठीक है, तो ये अपना था लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म. इसको मैं समराइज कर देती हूँ, कंसाइज कर देती हूँ कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में हमने बस ये देखा कि एक वो बिजनेस ज्यादा सर्वाइव करेगा जिसका जो मेन एम है वो है सर्विंग टू द सोसाइटी, सर्विस टू द सोसाइटी. एंड जब उसके मेंबर्स है जो सोसाइटी में जितने भी स्टेक होल्डर्स है, इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड दे विल विड्रॉ देयर कॉपरेशन, वेदर इट बी गवर्नमेंट, कंज्यूमर, स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर. एंड उसके बाद हमने देखा कि पब्लिक इमेज ऑफ अ फर्म कब अच्छी बनती है, व्हेन इट सपोर्ट्स द सोशल गोल्स. एंड सोशल गोल्स हमारे पास कितने 17 है. एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन वी हैव ESG प्रिंसिपल्स आल्सो, दैट आर 17 principles overall. It may be, I think, 9 principles. Let it be. So, this was your concept of this long-term interest of the firm. In the next session, we will be covering avoidance of government regulations. So, have a good day and keep revising. And ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है.